Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let's begin our Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar biography of the Noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is going to be our session 7. In the last session, we discussed Nabi sallallahu alaihi wasallam's his character, his nature, his social attributes. We will continue from that. As we all know, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was a combination of the best social attributes. He was an exemplary man with a weighty mind and faultless insight. He was favored with intelligence, originality of thought, and accurate means leading to his goals. His periods of long silence helped his habit of meditation and deep investigation into the truth. So, few characters, few qualities, चंद उनकी जो qualities थे, उनके character को जो एक different level पे ले जाते थे, वो ये थे कि of course he was intelligent, बहुत noble थे, बहुत disciplined थे, and जो उनका वो silence में contemplate करना, यानी गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना, उससे उनका focus जो था वो एक different level पे जाया करता था. As we all know, he used to isolate himself in Ghar Hira and he used to think, he used to focus, he used to concentrate. यानी दुनियादारी में या दुनिया के छोटे मोटे और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो थॉट प्रोसेस के अंदर अपने आप को एंगेज ना करते हुए, उन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट करते हुए जब एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बंदा फोकस करे और मेडिटेट करे, तो फिर वो एक अलग किस्म की थॉट प्रोसेस के अंदर जो पावर क्रिएट होती है, that is totally different. His vivid mind and pure nature was instrumental in assimilating and comprehending ways of life and people from the point of view of the individual and community. So definitely उनका जो सोचने का जो लेवल था वो सिर्फ एक अपनी हद तक नहीं था. It was not at the level of individual. वो एक अलग social and community level पर भी जाता था. उसका दायरा बहुत बड़ा था. He shunned superstitious practices but took an active part in the constructive and useful dealings. यानी एक तरफ जहां पर वो मनगढ़ंत omens और बिदा और superstitions वाली जिसकी कोई भी बेस नहीं थी, जिसकी कोई भी हकीकत नहीं थी, जो झूठ पर मबनी थी, वो सारी चीजों से तो उन्होंने इज्तनाब किया. Evil practices से इज्तनाब किया, जो मनगढ़ंत social cultural practices थे उससे इज्तनाब किया. But he was very constructive. वो जो थे वो बहुत कंस्ट्रक्टिव थे अपने डीलिंग्स में. He was very strong in good things. जहां पर उन्होंने गलत चीजों से अपने आप को बचाया, वहां पर वो पैसिव नहीं रहे, डोरमेंट नहीं रहे, वो अच्छी चीजों में एक्टिव रहे. So it is something हम लोगों के लिए जो एक लेसन है. Like sometimes we might say कि हम जो है बुरी चीजों से बच जाते हैं, but then we are in a neutral state. हमने बुरी चीजों से अपने आप को बचाया, लेकिन हमें अच्छी चीजें करनी है फिर. So you have to be in a state of an active person. मसलन where you are abstaining yourself from sinning and useless things को आपने अलग कर दिया, आप नहीं कर रहे हो, but आप कर क्या रहे हो फिर? आप फिर अच्छे काम कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हो. तो ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर लोग जो हैं अक्सर मिस कर जाते हैं. या तो वो नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होते हैं या तो वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो ये बैलेंस करना है हमने, नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव में एक्टिव होना है. सो दिस इज द थिंग जो कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का फर्क है. कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे डू देयर एक्स्ट्रा बिट of being little more active, and जो dormant, yeah, I mean I don't like to use the word unsuccessful, but then yes, जो कि कुछ achieve नहीं कर पाते हैं life में, it is the only reason that they either are involved in wrong activities, unproductive and destructive activities, or they are not doing the productive and constructive activities. So a bit of a philosophy there. Otherwise, he would have taken a route to his self-adopted seclusion. यानी अगर वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते या अपने सुकून या पीस या ट्रैंक्विलिटी के बारे में, तो वो सिर्फ उसी स्पॉट पे स्टॉप कर जाते. लेकिन he went the extra miles and he started thinking of khair, not for himself but for the entire community. He kept himself aloof from drinking wine, eating meat slaughtered on the stone altars, और attending the festivals of the idolaters. ये तो हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि सुभान अल्लाह, इन लोगों की जो ये अच्छी क्वालिटीज थी,
वो बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम के भी उन्होंने वो जितनी भी गलत शिर्क वाली एक्टिविटीज है, बिदा वाली एक्टिविटीज है, उनसे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने आप को बचाए रखा। तो ऑफ कोर्स ना वो वाइन पीते थे, ना वो गैरुल्लाह वाले स्लॉटेड एनिमल खाते थे, ना उनके बुत वाले जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें इन्वॉल्व होते थे। He held the idols in extreme aversion and disgust. In fact, he used to express his disgust. उनको वो बहुत disgusting लगता था, and he used to express his disgust against the idolatry. यानी वो सिर्फ अपने हद तक के नहीं रखते थे. He used to express कि he doesn't like it. ये चीज से उनको बहुत तकलीफ है. He doesn't accept it. He could never tolerate someone swearing by Allah and Al-Uzza. कोई अगर अल्लाह और उज्जा, ये idols के नाम है. By now we should know this. कि ये अल्लाह और उज्जा की अगर किसी ने कसम खाया तो वो उसको टॉलरेट नहीं करते थे. Allah's guidance and care, no doubts, detached him from all the repulsive or evil practices. यानी एक अंदर के इंसान के अंदर एक फितरा होता है, which is a good soul, and जो अच्छाई की तरफ ही आपको माइल करता है. Even though you might not know the true fact, आपके पास इल्म और फहम आया नहीं हो, but still that नफ्स जो है आपकी, the good नफ्स, वो जो है आपको नफ्सल मुतमइना, आई वुड से, वो आपको कहीं ना कहीं से डायरेक्ट कर रही होती है. एंड कुछ लोगों में अगर उनके डीड्स अच्छे हैं, दैट मीन्स यू आर फीडिंग योर गुड नफ्स, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है. एंड सपोजिटली इफ यू आर इन्वॉल्व इन द इविल एक्शंस, तो आपकी नफ्सल अम्मारा बहुत स्ट्रांग होती है. सो विच एवर सोल यू विल फीड, दैट विल बी डोमिनेंट. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरा वाज क्लीन एंड वेरी नाइस, एंड अंदरूनी तौर से वो ये सब चीजों से, जो नेगेटिव चीजें थी, जो अन इस्लामिक एंड इविलिश प्रैक्टिसेस थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. Even when he tried to follow his desire to enjoy some worldly pleasures or follow some unrespectable traditions, Allah's providence intervened to control any slip on his part. And subhanallah, we can see, because he was the chosen one, Allah Ta'ala ने select किए हुए नबी हैं, तो जहां कहीं अभी he's a human. This is another very good example for us to believe that he was a bashar, he was a human being. So he had desires, he had some उनकी जो एक स्ट्रैंड या सोच अगर वर्ल्डली प्लेजर की तरफ जाती थी, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह इंटरवेंशन आ जाता था बीच में, कहीं ना कहीं जाके वो रोक. जैसे इफ यू रिमेम्बर कि कैसे जब वो छोटे थे और कैसे जिब्रील अमीन आके उनके दिल में से, वो हार्ट में से शैतान का क्लॉट निकाले. सो यू कैन इमेजिन देयर इज अ डायरेक्ट इंटरवेंशन जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूज्ड टू प्रोटेक्ट हिम. Ibn al-Athir reported Muhammad sallallahu alaihi wasallam as saying, I have never tried to do anything the people of ignorance did except for 2 times. यानी this is reported कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी भी कोई जो दौरे जहलियत वाले लोगों की जो प्रैक्टिसेस थी उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, and he has not done anything of those people's practices except दो मर्तबा. Every time Allah intervened and checked me from doing so, and I never did that again. So he was, of course, the favored one, the special one, I would say, क्योंकि Allah Ta'ala, he used to intervene and stop. How? Of course, there are ways and means to do it, but Allah has protected him always. Once I told my fellow shepherd to take care of my sheep when we were in the upper part of Makkah. I wanted to go down to Makkah and entertain myself as the young man did. I went down to the first house in Makkah where I heard the music. I entered and asked, what is this? Someone answered, it is a wedding party. I sat down and listened, but soon went into the deep sleep. I was awakened by the heat of the sun. I went back to my fellow shepherd and told him that what happened to him. I never tried it again. In one of the incidents, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बकरियों को चरा रहे थे, तो उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, तो उन्होंने अपने फेलो शेपर्ड को कहा कि मेरी बकरियों का ध्यान रखो, और वो उतरे जहां पर से आवाज आ रही थी. जैसे ही वो इस एरिया में गए, वहां पर म्यूजिक चल रहा था, बिकॉज शादी का कोई फंक्शन था. वो एंटर हुए, उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो वो एक आदमी ने बताया उन्हें कि यहाँ पर ये एक वेडिंग पार्टी है. वो जैसे ही उधर बैठे म्यूजिक सुनने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको नींद की स्टेट में डाल दिया. सो ही फेल्ट अस्लीप, ही डिडंट लिसन एनीथिंग. उनके कानों में वो समात नहीं गई. दिस इज हाउ अल्लाह इज प्रोटेक्टिंग, यू सी, सुभान अल्लाह. एंड उसके बाद फिर धूप की गर्मी से वो उठे और फिर बाद में दोबारा अपने फेलो शेपर्ड के पास गए, एंड देन ही नेवर डिड दैट अगेन. Al-Bukhari reported on the authority of Jabir bin Abdullah that he said, while the people were rebuilding Al-Kaaba, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went with Abbas
to carry some stones. Abbas said, put your loin cloth round your neck to protect you from the stones. As he did that, the Prophet ﷺ fell to the ground and his eyes turned skyward. Later on, he woke up and called, my loincloth, my loincloth. He wrapped himself in his loincloth. In another report, his loins were never seen afterwards. एक बार जब काबा को रीबिल्डिंग की बात चल रही थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हेल्प किया अब्बास को कि वो स्टोन्स कैरी करें. तो उन्होंने उनसे कहा था कि जो आपके ये कपड़ा है पैरों यानी जो इजार है उसको अपने नेक पे बांध दो ताकि आपको स्टोन से इंजरी ना हो. तो प्रॉफिट जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए, उनकी आंखें ऊपर को टर्न हो गई और फिर वो यानी ही डजंट रिमेंबर व्हाट ही वाज गोइंग टू डू. उनके अंदर वो गुनूदगी छा गई फिर से और फिर वो पुकारने लगे कि मेरा वो कपड़ा किधर है, मेरा कपड़ा किधर है. और फिर उन्होंने अपने आप को दोबारा से उस कपड़े से अपने आप को लपेट दिया. ओके. The Prophet was distinguished among his people for his modesty. यानी अभी ये जो दो इंसिडेंट्स है इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि अगर वो कोई भी यानी देखा जाए तो दिस इज नॉट अ वेरी मेजर थिंग दैट ही डिड कि कोई पूजा में या उनके फेस्टिवल में या उनकी कोई और शिरकिया एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स में भी अल्लाह ताला हैज प्रोटेक्टेड हिम. The Prophet was distinguished among his people for his modesty, virtuous behavior and graceful manners. देखें the qualities. Modesty, उनके अंदर जो एक आजिज़ी और हया होती थी. Virtuous behavior, बहुत अच्छा उनका जो नेक मामलात होते थे लोगों के साथ, बहुत खूबसूरत आदाब होते थे उनके. These are the things that actually differentiates between a believer and an unbeliever. These are the qualities that can differentiate between an educated, knowledgeable person and an illiterate, uneducated person. हमें अपने बारे में सोचना है. How are we? How is our मामलात? How is our speech? How is our आदाब? हमें हर बार इस चीज का चेक करना है, assess करते जाना है. He proved himself to be the ideal of manhood and to possess a spotless character. So, एक तो ideal manhood बिल्कुल perfect, close to perfect, एकदम spotless, 10 on 10 वाला character. और बिल्कुल 1% की उसमें कमी पेशी नहीं. A perfect human being. He was the most obliging to his compatriots, the most honest in his speech, and the mildest in temper. Very important point. Again, हमारे लिए चंद अगर हम qualities देखें कि हमें क्या क्या imbibe करना है अपने आप में, अपने आप को सुधारने के लिए. तो he was very obliging to his compatriots. यानी जो उनके कंपेनियंस थे उनके साथ भी बड़ा उनका नरम मिजाज, उनके साथ भी बड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड, बहुत जिसे कहते हैं ना कि ना बॉसी, ना रूड, ना एरोगेंट, वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट. उसके बाद बहुत ऑनेस्ट है अपनी स्पीच में. उनके जो है रशीदा प्लीज आप अपना माइक ऑफ करिए, मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ से. इट्स गेटिंग अनम्यूट अगेन. ओके. और बहुत ही सच्चे थे अपनी स्पीच में, हक बात करते थे और अपने गुस्से वाले नहीं थे. यानी वेरी माइल्ड. इट वाज वेरी इजी टू डील विद हिम. उनके साथ जो है एक मिनट, मुझे सीमा इज राइटिंग टू मी कि यहाँ रिकॉर्डिंग है तो क्या हम यहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते? क्वेश्चन बेशक कर सकते हैं आप एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिकॉर्डिंग, यस वी आर रिकॉर्डिंग. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, बट फील फ्री टू क्वेश्चन, फील फ्री टू टॉक एंड डिस्कस. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन यू आस्किंग एनी क्वेश्चंस. इट्स ओके. दिस इज गोइंग ऑन माई यानी ये मेरे ही सर्कल में और यूट्यूब चैनल पे है, तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं. जो भी प्रॉब्लम्स अल्लाह ना करे अनौजुबिल्लाह होगी, आई एम आंसरेबल बिकॉज इट्स गोइंग इन माई चैनल. सो फील फ्री. बिइज़्निल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके. डोंट वरी. हाँ, ओके. सो ही वॉज माइल्डेस्ट इन टेम्पर. यानी हम लोग जो है ना एक चीज को हमेशा जहन में रखें कि जैसे हम हमेशा बार बार इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारी टंग, हमारा टेम्पर, these are the loopholes जिससे कि शैतान हमारे को गुनाह की तरफ माइल कर रहा होता है एंड वो हमारे ब्रेन को रूल कर रहा होता है, हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस को फिर उसके बाद कंट्रोल कर रहा होता है. नेवर गिव दैट चांस.
आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, आप अपनी जबान पे कंट्रोल करें, एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि इतना आपको सुकून मिलेगा और इतने आप गुनाह और गलत कामों से बच जाएंगे. बिकॉज समटाइम्स हम गुस्से में ऐसी कलिमात यूज कर लेते हैं या ऐसी बातें कर लेते हैं जो आप मीन नहीं करते. इट इज जस्ट टेम्पररी कैफियत. तो वो बाद में यू हैव टू च्यू ऑन योर वर्ड्स. आपको अपने बोलते हैं ना पॉइजनस वेनम आपको बाद में स्वॉलो करना पड़ता है खुद. तो डेफिनेटली बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि गुस्से में किए हुए फैसले और खुशी में किए हुए वादे अक्सर गलत होते हैं. सो टेक हीड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वर्ड्स और इसको अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करें. गुस्सा हराम क्यों है? बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज सिनोनिमस विद शैतान. बहुत डेंजरस चीज है ये गुस्सा. तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो भी मीन्स इस्तेमाल करें करें बेशक. और अपनी टंग का सही इस्तेमाल, ये एक लाइफ टाइम तक इस चीज को अपने लिए एक नसीहत बांध लें कि मैंने ये दो चीज जो है इसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देना है. He was the most gentle-hearted, chaste and hospitable. Again, few qualities. बहुत जेंटल थे. उनका जो दिल था वो सख्त नहीं था. जालिम ऑप्रेसर वाले क्वालिटी नहीं थी उनके अंदर. बहुत रहम शफकत और नेक थे वो. बहुत जिसे हम कहते हैं ना कि पाक दामन. ओके. और हॉस्पिटेबल, बहुत गनी थे, यानी कंजूस बखील नहीं थे. दैट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ बिलीवर्स बाय द वे. तो बहुत ज्यादा जेंटल हार्ट और बहुत नेक पाक दामन वाले और हॉस्पिटेबल थे. He always impressed people by his virtuous words and expressions. ये हमें पता है कि सुभान अल्लाह he was gifted the gift of gab. उनके जो कलिमात होते थे, उनकी जो बातें होती थी, उससे लोग बहुत माइल होते थे. अब इमेजिन जब वही आने लगी तो सोने पे सुहागा. अब जब वर्ड्स अल्लाह उनको रिवील होने लगी तो उनकी बात में कितना वजन आ जाएगा कि लोग उनकी बातें सुनकर दीन पे पलट आते थे. लोग जो दुश्मन होते थे उनकी बात सुन के, यानी they used to enter the fold of Islam without even thinking. It was so mesmerizing कि लोग जो है वो उसकी उनकी बात का ऐसा एनेस्थेटिक इफेक्ट होता था कि वो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाते थे. दैट वाज द क्वालिटी कि कितना खूबसूरत वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस उनके होते थे. ही वाज द मोस्ट ट्रूथफुल एंड द बेस्ट टू कीप अ कोवेनेंट. ये हमें पता है. He was the most honest. He was the most truthful. और ये बात सबको पता थी. कुरैश मक्का के जो चीफ्टन सब सारे लोगों को पता थी कि अगर उन्हें नंबर 1 पर्सन इन ट्रूथफुलनेस एंड इन ऑनेस्टी अगर किसी को पिन पॉइंट करना है तो दैट यूज्ड टू बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड ही अचीव्ड दैट टाइटल बाय फॉलोइंग इट कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं कि एक पल वो सच्चे हक पे थे, दूसरे पल अनाज़बिल्ला वो कहीं पर झूठ फरेब में शामिल हो गए. नहीं, वो मुसलसल उनका कैरेक्टर रहा है. एंड इट इज अ वेरी टफ टास्क बाय द वे. His fellow citizens by common consent gave him a title of Al-Amin, the trustworthy. लोग उनको ट्रस्ट करते थे और अपनी वैल्यूएबल्स और वो सारी चीजों से भी उनको उनके ऊपर एज जैसे हम कहते हैं ना कि उनको जिम्मे रखा करते थे. किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था उनको, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे था. The mother of believers, Khadija radiallahu anha, once said, he maintains ties of kinship, helps the poor and needy, he entertains the guests and stands with the oppressed for truth. Khadija radiallahu anha एक बार बताया उम्मुल मोमिनीन ने, I mean these were her words. In fact, if you remember ये कौन से वाले words हैं जब वो गारे हिरा से आए थे, we will inshallah read that. तो तभी she had mentioned all these qualities कि ये वो शख्स हैं जो अपने टाइज ऑफ किनशिप यानी रिलेशंस ऑफ वूम जो है, सिला रहमी जो है अपने इमीडिएट फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ मेंटेन करते हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी टफ टास्क. आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. उसके बाद गरीबों की, जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करते थे. फिर जो उनके घर में गेस्ट आए उनको एंटरटेन, उनको उनके साथ बहुत जेनरस और हॉस्पिटेबल बिहेवियर था उनका. एंड जो जिस पे जुल्म किया जाता था, हक जो हक की साइड पे है और नीडी है और गरीब है, जिन पे जुल्म किया जाता था, तो ही यूज्ड टू स्टैंड फॉर देम. तो ये सारी क्वालिटीज जो है वो पार एक्सेलेंस है. एंड दैट इज द रीजन पीपल लव्ड हिम एंड ही वाज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल टू फॉलो. Coming to the Makkan period now.
The life of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam is divided into two periods. दो हिस्सों में तकसीम है उनकी जिंदगी. एक मक्कन पीरियड जो उन्होंने मक्का में गुजारा, और एक मदीनियन पीरियड जब वो हिजरत करके मदीना में गए. Allah honored him with prophethood and the message. Each of these periods of his life were distinguished from other. यानी दोनों ही बहुत मुख्तलिफ, दोनों ही बहुत डिफरेंट एंड दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग एडवेंचरस काइंड ऑफ फेज है. मक्का में तकरीबन 13 इयर्स उन्होंने गुजारे, 13 साल, एंड मदीना में अप्रोक्सीमेटली 10 साल. ओके, सो दिस इज लाइक 23 इयर्स का वक्फा है, ये पीरियड है ये. और वी विल सी व्हाट ऑल हैपेंड इन दिस मक्कन पीरियड नाउ. Each period consisted of distinct levels, which became apparent after investigating the phases that the invitation to the messenger passed through during each of the two periods. The Makkan period may be divided into 3 levels. अभी हम मक्कन पीरियड को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मक्कन पीरियड जो है वो 3 लेवल में डिवाइड हो जाएगा. पहला वाला फेज कौन सा है? सीक्रेट इन्विटेशन, विच लास्टेड फॉर 3 years. यानी नबूवत आने पर मैसेज जब उन्होंने रिवील करना शुरू किया तो वो सीक्रेटली करते थे, ओपनली नहीं करते थे. और ये सीक्रेट मिशन जो था ये तकरीबन 3 साल चला. द फेज ऑफ पब्लिक इन्विटेशन, फिर एक स्टेज आया सेकेंड लेवल जहां पर पब्लिकली वो दावा देने लगे. द पीपल ऑफ मक्का spanning from the beginning of the 4th year of the prophethood until he migrated to Medina. यानी ये 3 साल सीक्रेटली उन्होंने किया, फिर चौथे साल से लेकर जब तक कि वो मदीना में हिजरत नहीं कर गए, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड फेज, जहां पर वो आम पब्लिकली इन्विटेशन देते थे, दावा करते थे. द फेज ऑफ इन्विटेशन आउटसाइड मक्का, ये हुआ अपना तीसरा फेज, तीसरा लेवल. फ्रॉम द एंड ऑफ द 10th year of prophethood थ्रू द मदीनियन पीरियड अंटिल द एंड ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ. यानी जब 10 साल ऑफ नबूवत गुजरा तब से लेकर मदीना तक और अंटिल द प्रॉफिट्स लाइफ, ये उनका तीसरा लेवल हो गया. द पीरियड ऑफ मदीनन फेज इज डिस्कस्ड इन इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस. अब जब आगे हम मदीनन पीरियड पढ़ेंगे तब हम उसको लेवल्स में डिवाइड करेंगे. लाइफ इन मक्का. In the shade of the message and prophethood in the cave of Hira, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was nearly 40, अब इनकी जो एज है 40 years है. He was accustomed to passing long hours in seclusion, meditating and reflecting over all aspects of creation around him. वो क्या करते थे? अकेले में पॉन्डर करते थे, तदब्बुर करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे अबाउट द क्रिएशन, और ये सब आसपास की जो चीजें हैं ये क्या है, किसने बनाया, कौन खालिक, कौन मालिक. He used to contemplate. This meditative temperament served to widen the mental gap between him and his compatriot. He used to provide himself with sawi, barley porridge and water, and then directly head for the hills and ravines in the neighborhood of Makkah. यानी ये अपने साथ जो है बार्ली जौ होता है, जौ की खीर जैसी पॉरेज जो है वो ले लेते थे, पानी ले लेते थे, और ये फिर अपने हिल्स और इधर जाके मक्का में अकेले में तदब्बुर करते थे. और ये जो इनकी जो एक्टिविटी थी, मेडिटेटिव एक्टिविटी जो थी, इसके वजह से इनके और इनके जो कंपैट्रियट साहबाज थे उनके बीच में सोच का फर्क था. बिकॉज एक बंदा है जो बहुत फोकस्ड है, उसकी थिंकिंग लेवल विल बी एट अ डिफरेंट टेंजेंट, और जो हम रेगुलर दुनिया की गहमा गहमी ये सब चीजों में लगे हैं तो हमारी फोकस विल बी ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट. सो ऑफ कोर्स एज आई सेड कि इससे उनके अंदर बहुत शार्पनेस आ गई थी. One of these in particular was his favorite retreat, a cave named Hira. We all know about this. In the Mount An-Nur. तो गारे हिरा कौन से जबल पे है? जबल अन-नूर. It was only 2 miles from Makkah, a small cave 4 arm length long and 1.75 arm length wide. यानी एक छोटी सी गुफा थी जबल अन-नूर में, जिसका जो डायमेंशन था वो 4 arm length, 4 arm length का लॉन्ग था और 1.7 arm length का वाइडन था. He would always go there and feed any poor people who came to him. यानी उसमें भी उन्होंने अपने लिए जो पॉरेज लिया होता था, अगर कोई गरीब मिस्कीन हंगरी मांगने आए तो वो भी उसको दे देते थे. He used to devote most of his time and Ramadan in particular to worship and meditate on the universe around him. यानी वो बैठ के अपना जिक्र कर रहा है. हालांकि सी अभी तक इस्लाम या ये जो है कुरान रिवील नहीं हुआ है, but he had that thing in him. Okay, and then he used to meditate, especially in Ramadan.
His heart was restless about the moral evils and idolatry that were widespread among his people. उनको बेचैनी थी, बहुत कोफ्त होती थी. He used to find it very disgusting कि ये क्या evil practices है, ये क्या बुत परस्ती है. उससे वो बहुत बेचैन होते थे. However, he was helpless because he had not been guided to any definite course of action to follow and clear away the ill practices existing around him. अब आप देखिए, आपको एक चीज का पता है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है. यू रेज अ प्रॉब्लम, आपने कहा ये सही नहीं है, प्रॉब्लम है. तो आप जब आप किसी जगह पे प्रॉब्लम रेज कर रहे हो तो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज कुरान की वही नाजिल नहीं हुई थी, हिदायत नहीं उतरी थी, तो ही डिडंट हैव क्लियर गाइडलाइंस कि अच्छा ये आइडोलेट्री तो रॉन्ग है, तो क्या करें, अगर आइडल वर्शिपिंग ना करें तो क्या करें. तो वो क्वेश्चन मार्क अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था. Seclusion coupled with this sort of reflective approach must be understood in its divine perspective. It was a preliminary stage to the period of grave responsibilities that he was to shoulder very soon. यानी ये जो उनका अकेले में अपने आप को सब दुनिया वालों से कट करके सेक्लूजन में जाना, ये बहुत एक तरीके से उनकी प्रिपरेशन चल रही थी. ओके, अल्लाह की तरफ से एक प्रिपरेशन चल रही थी प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए, क्योंकि आगे चल के उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी और उनके कंधे जो हैं वो मजबूत हो जाने चाहिए. जैसे आप सोचें, एक फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स के एक्टिविटी आप ले लें, एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, ओके, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट आने वाला है. तो आप सोचें कि आपकी प्रैक्टिस कैसी होती है. वो स्पोर्ट्स पर्सन की प्रैक्टिस जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है, और जिस तरीके से वो हार्ड कोर ट्रेनिंग पीरियड होता है, दिस वाज समथिंग लाइक दैट, कि इसके आगे जो जिम्मेदारी इन पे आने वाली थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत आजमाइशें आने वाली थी. इट विल बी लाइक अ ट्रिमेंडस टास्क फॉर हिम. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज प्रिपेयरिंग हिम फॉर दैट. Privacy and separation from the impurities of worldly life were two indispensable prerequisites for him to meet what Allah had in store for him. तो 2 चीजें जो थी वो एक तरीके से कंडीशंस थी कि वो प्राइवेसी में जाएं और सबसे अलग हो जाएं. सेपरेशन फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, यानी दुनिया की जो गंदगी थी वो नजासत से उनको अलग कर दिया जाए और प्राइवेसी में उनका फोकस शार्प कर दिया जाए. ये 2 क्वालिटीज थी जो, या प्री रिक्विजिट्स, कंडीशंस थी कि जब अल्लाह का ये बहुत बड़ा टास्क या मिशन या काम उनके लिए उनके सामने लाया जाए, तब ये बिल्कुल पाक हो, रिलैक्स्ड हो और अब एकदम अंदर से ताहिर, इनसाइड आउट प्यूरिफाइड स्टेज हो. Preparing him to carry the great trust to change the face of the earth and alter the course of history, because this is not a small thing. जब इस्लाम या कुरान नाजिल हुआ, it changed the entire course of action. I mean, you can imagine it was a huge thing जो कि कभी नहीं हुआ, और ये एक बार आने से till the end of the time तक पूरी वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर और जो लोग और जो सोच और जो परसेप्शन है वो सब बदलने वाला था. तो ये एक छोटा टास्क नहीं था, ये बहुत जाइजेंटिक टास्क था. It was an intense period of privacy which lasted for 3 years prior to the beginning of the mission. यानी ये मिशन शुरू होने के पहले 3 साल की समझो हम ट्रेनिंग चल रही थी, तकरीबन 3 साल का सिक्लूजन ट्रेनिंग चल रही थी. Entering a new era of lasting contact with the unseen that Allah subhanahu wa ta'ala would permit him to witness. Finally, Jibreel brings down the revelation. When he was 40, the peak of one's life, and it is said that this is the age when prophets were always ordered to disclose their message. अभी हमने देखा कि there are certain numbers which is very common, जैसे कि death जो है 63 years, नबूवत जो है 40 years. So that is what that pattern is again following. कि जब 40 साल की पीक वाली उम्र आती है, and if I may ask to all of you, कि जब हम 40 years के हो जाते हैं, एक अलग ठहराव हमारी पर्सनालिटी में आ जाता है, एक बहुत कंपोज्ड कैरेक्टर हम बन जाते हैं. वी आर वेरी श्योर ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हमारी एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स में एक ठहराव आ जाता है. तो जब वो हमारी पर्सनालिटी में एक ठहराव आ जाता है और जब हमारे एक्शंस के अंदर वजन आ जाता है,
दैट इज द टाइम जब हम सब चीजों की अथॉरिटी अपने हाथ में लेने लायक हो जाते हैं. हम जो है वो अल्हड़, कमसिन, नादान दिमाग नहीं कहलाते. देन you reach a stage of maturity. You are good enough to take the responsibilities. You are good enough to implement, to control, to lead. तो in general आप देखें, like, to understand the wisdom, 40 years is very ideal and very strong. ये एज में फिर आपको जो है मोड़ा या डाइवर्ट करना मुश्किल है. अब आप पक्के पक्के हो गए हो, ठीक है ना. So when he was 40, the peak of one's life, and it is said that this is the age when prophets were always ordered to disclose their message. Signs of his prophethood began appearing on the horizons of his life. Similarly, Nabi sallallahu alaihi wasallam को भी 40 years की ये सारा मामला जो है 40 years की एज में हुआ. एंड जैसे प्रीवियस नबियों के साथ हुआ था कि इस टाइम पे आपको मैसेज को रिवील करना है, आपकी नबूवत की जो जो निशानियां हैं उसको लोगों पे जाहिर करना है. Among these signs were that stones in Makkah would greet him when salutations of peace, salam. जो मक्का के जो stones थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजा करते थे. They used to literally communicate, यानी. He would not have a dream except that it would become reality, as clear as dawn. This lasted for a period of 6 months. यानी तकरीबन 6 महीने के लिए उनके जो ख्वाब थे वो जो हकीकत होते थे. यानी he used to see things that would happen into reality. ये भी one of the signs of prophethood होती थी. The period of prophethood was 23 years, so this 6 months period full of true visions constitute an integral part of the 46th part of prophethood. तो यानी ये जो prophethoods के 20 stages या levels होते हैं, तो ये जो ख्वाबों का हकीकत में आपको नजर आना, ये 46th part of prophethood कहलाता है. तो ये तकरीबन 6 महीना का सिलसिला चलता रहा कि उनकी जो ड्रीम्स थे वो उनको रियलिटी दिखाई दे रही थी. In Ramadan, in his third year of solitude in the cave of Hira, Allah's will desired his mercy to flow on earth, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was honored with prophethood, and the light of revelation burst upon him with some verses of the noble Quran. अब रमदान में जो तीसरा साल था जहां पर वो अलग हुआ करते थे गारे हिरा के अंदर, अल्लाह ताला decided कि now इन पे वही नाजिल होगी and the prophethood will be declared, and some verses of Quran were revealed to him through Jibril Amin. As for the exact date, careful investigation into the circumstantial and relevant evidence allows us to fix it on Monday. अभी कुछ ना कुछ जितने भी ये astrologers या you can say people who have the ilm of calculation, तो उन्होंने इसको कैलकुलेट करके रमदान की 21st नाइट एंड मंडे एंड 610 CE एंड August 10 ऐसी डेट्स डिराइव की है. बट द एक्चुअल टाइम एंड पीरियड अल्लाहु आलम. With Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam exactly 40 lunar years, 6 months and 12 days of his age. तो उनकी एज तकरीबन 40 years, 6 महीना 12 दिन थी. एंड ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से 39 Gregorian years, 3 months and 22 days. Aisha radiallahu anha gave the following narration of the most significant event that brought the divine light, which would drive out the darkness of disbelief and ignorance. तो ये जो divine light थी, ये जो नूर था, ये जो रोशनी थी, ये जो हिदायत थी, ये जो हुदा था, ये पूरी जहालत और पूरी मनगढ़ंत कुफर को, ये डार्कनेस है ना, इसको ड्राइव आउट करने वाली चीज थी. It led life down a new course and brought about the most serious reforms in the history of humanity. हमने ये डिस्कस किया कि ये छोटी चीज नहीं थी, ये forever the history of humanity को बदलने वाला किस्सा था. The first initiation of revelation for Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam assumed the form of true dreams that would strikingly come true all the time. After that, seclusion became dear to him, and he would go to the cave of Hira to engage in tahannuth, which is called devotion, there for a certain number of nights before returning to his family. तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो अकेले में बैठना, आइसोलेशन बहुत पसंद आने लगा, और वो सिक्लूशन उनको बहुत डियर हो गया था. और वो जो है ना डिवोशन में
सर्टन नंबर ऑफ नाइट्स जो है अकेले में गुजारा करते थे, एंड देन ही वुड रिटर्न। जब उनको खाने पीने की जनरल प्रोविजंस की जरूरत होती थी तो ही यूज्ड टू come back. Yes, sometimes Khadija radiallahu anha used to carry with her. The angel came to him and said, Iqra, recite. I cannot recite. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani he was illiterate. He was not officially educated. Okay. अब उनके सामने अचानक एक फरिश्ता आ गया, रोशनी, ओके, और अपने अपने यानी आप देख सकते हैं कि ये अनसीन चीजें जो है, हमारा माइंड जो है वो कंटेम्पलेट या जल्दी से उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता. वी हैव नेवर हर्ड ऑफ समथिंग, वी हैव नेवर सीन समथिंग, एंड सडनली ऐसी कोई चीज आपके सामने पॉप अप हो जाएगी. सो व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? सेकेंडली, उनसे कहा जा रहा है कि पढ़ो जबकि उन्हें पढ़ना नहीं आता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल वन ऑफ यू जापानीज टेक्स्ट दिखा के रीड, you will be shocked. I don't know, I've not seen those letters, I don't know, I can't read. Similarly, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, I cannot recite. He, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, I cannot recite. The Prophet prescribed, then he took me and embraced me tightly, and then let me go and repeated the order, recite, Iqra. फिर एंजल जिब्रील ने क्या किया? उनको हग किए, एम्ब्रेस किए, और फिर उनसे दोबारा से कहा, रिसाइट, इकरा. दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, I cannot recite. Once again he squeezed me and let go me until I was exhausted. अभी फिर दोबारा से उन्होंने एम्ब्रेस किया, हक किया, और फिर टाइट हक किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एग्जॉस्टेड फील कर गए, थक गए. एंड देन फिर से उनको कहा, इकरा. He again said, I cannot recite. And then third time उन्होंने दोबारा से उनको एम्ब्रेस किया, हक किया, झपी दी, गले लगाया, और फिर लेट गो किया. और फिर the verses of Surah Alaq were revealed. The first 3 verses. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, aqra wa rabbukal akram. ये verses reveal हुई. The Prophet repeated these verses trembling with fear. Of course, fear, I told you the state of mind, एक normal human being की जो कैफियत है. After this, he came back to his wife Khadija radiyallahu anha. अब वो घबरा गए और खौफजदा हो गए, दौड़ते हुए अपनी वाइफ खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पास आए और उनको कहा, cover me, cover me. They covered him until he regained composure and felt at ease. जब उनको कवर कर दिया गया, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को गैदर किया, फिर उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गए. He informed Khadija radiallahu anha of the incident of the cave and added that he was frightened. Another proof for us कि he was, subhanallah, a normal human being. बशर थे, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की इमोशंस होती है, घबरा जाना, डर जाना. This is weird. This is something different. Never happened, never heard, never seen. So definitely he also got scared and he said he's frightened. उसके बाद ये पॉइंट्स है खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड डन दिस इन डिटेल जब हमने खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की बायोग्राफी की थी, कि औरतों का जो चलन है या औरतों का जो बिहेवियर है या औरतों का जो वाइफ्स का यानी बीवियों का खासतौर से रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड्स कैसा होना चाहिए, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स हस्बैंड एंड हिज इश्यूज, उसके मामलात कैसे होने चाहिए. आप देखें, व्हेन ही वाज इन दिस स्टेट, वल्नरेबल स्टेट में थे, तो सबसे पहले वो किधर गए? अपनी वाइफ के पास. यानी ही इज अश्योर्ड कि ही विल बी प्रोटेक्टेड, ही विल बी अंडरस्टूड, ही विल बी गिवन सम सॉल्यूशंस. अब ये कितनी बड़ी चीज है कि आप सोचें, अभी आप लोग अपना अपना जितनी मैरिड वाइफ्स हैं यहाँ पर, मैरिड सिस्टर्स, वो सोचें कि अगर हमारी सिचुएशन में इफ अ सिचुएशन अराइजेस, क्या हमारे शौहर हमारे पास आएंगे अपनी मुश्किलों को लेकर, या किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, या अपनी मॉम के पास जाएंगे, या अपनी किसी बहन के पास, या किसी और के पास जाएंगे? हु इज द वन जिसके पास वो सबसे पहले जाएंगे? क्योंकि अगर वो आपके पास आएंगे, दैट मीन्स आप कामयाब हो गए आपके रिलेशनशिप में, दैट you have cultivated a relationship, you have developed an understanding with your husband that he can rely on you. वो आप पे रिलाई कर सकते हैं, उनको ये उम्मीद है कि आप उनको समझेंगी, उनको ये भरोसा है कि आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करके देंगी. इफ यू थिंक ही कम्स टू यू, सुब्हानअल्लाह, मुबारक टू यू, कंग्रेचुलेशन. और अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं आएंगी, दैट मीन्स यू स्टिल हैव टू वर्क अ लॉट. अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए
What were her words? I want you to carefully listen to this and understand it. His wife tried to soothe him and reassured him, saying, Allah will never disgrace you. You unite relations of the womb, bear the burden of the weak, help the poor and needy. You entertain the guests and endure hardships in the path of truthfulness. खूबसूरती से उन्होंने उनकी सारी क्वालिटीज को पॉजिटिवली कितने अच्छे से बयान किया. उन्होंने कहा आपको कभी भी कोई भी शर्मिंदगी नहीं हो सकती अल्लाह की तरफ से, कोई भी ऐसी आजमाइश नहीं आ सकती आपकी तरफ. क्यों? क्योंकि आप रिश्तों को जोड़ते हो. ओके. उसके बाद आप कमजोरों का बोझा उठाते हो, आप गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करते हो, आप अपने गेस्ट के साथ अच्छा मामला करते हो, और आप जो है इतनी तकलीफें उठाते हो हक के रास्ते पे चलने के लिए. अल्लाह विल नेवर डिसग्रेस यू. आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा अल्लाह की तरफ से, और कोई भी इस तरीके से आपकी बेइज्जती का कोई भी बायस नहीं बनेगा. विच मीन्स देयर इज हिकमा. दिस लेडी सुभान अल्लाह possessed इंटेलिजेंस, उनके अंदर विजडम थी. वो ना तो शॉक हुई जो हम लोगों का नॉर्मल फीमेल्स का रहता है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी, वी आर लाइक दिस. घबरा जाना, चिल्लाना, अगर कोई तकलीफ में तो उसकी और तकलीफ बढ़ा देना, ज्यादा हम लोग यानी वी आर टू ड्रामेटिक. हम लोग जो है ना, जो करने वाले काम है वो छोड़ के चिल्ली पुकार और बिला वजह की दूसरी चीजों को करते हैं. एक टिपिकल सिनेरियो मैंने कहा था, आई टोल्ड यू सो, डोंट गो देयर. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हम लोग का जो एक टिपिकल कॉमन connotations या हमारे कमेंट्स रहते हैं, वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दैट. वो ड्रामा और वो छोटी सोच को ना भी चेंज करना पड़ेगा हमें. वी हैव टू बिकम मोर वाइज, मोर बेटर, मोर कंपोज्ड. ओके. ताकि हमारी अप्रोच ऐसी हो कि हम उस लेवल पे पहुंचे कि हम एक एप्ट सोल्यूशन दे सकें. हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस है ना, इसको एब्जॉर्ब कर सकें. कोई खुशी आए उस पर कैसे हमने रिएक्ट करना है, कोई गम आए उस पे कैसे रिएक्ट करना है, कोई शॉक आए उस पे कैसे रिएक्ट करना है, कोई फ्राइटनिंग मोमेंट्स आए उस पे कैसे रिएक्ट करना है. वी हैव टू डेवलप दोज शॉक अब्जॉर्बर्स इन अस रादर देन रिएक्टिंग टू लाउड, इमोशनल, सेंटिमेंटल. अपने दिमागी तवाजुन को होल्ड करते हुए आगे बढ़ना. सो सुभान अल्लाह, इन 4-5 sentences शी एक्सप्लेन. कितना अश्योरिंग, कितना कंफर्टिंग वर्ड्स हैं. ठीक है. Then what she did, अब ये तो हो गया, अब now she has to figure out what's going on. She has to help. He came to her, the husband came to her to figure out and find out. Okay, what she did, वो गई अपनी cousin के पास, Warqa bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, who had embraced Christianity in the pre-Islamic period. वो अपने cousin, अब ये बात ध्यान में रखें, आप कभी एडवाइस या कभी कोई काउंसलिंग या कोई सोल्यूशन के लिए जाएं, बी वेरी श्योर आप किसको अप्रोच कर रहे हैं. अगर आप किसी ऐसे बंदे को अप्रोच कर रहे हैं जिसे सब्जेक्ट का नॉलेज ही ना हो, जिसकी स्टडी या रिसर्च ही ना हो, जो खुद डूबती हुई कश्ती में सवार है, उसके पास आप जाके पूछें कि भाई ये मेरी बोट में होल हो गया है, मैं कैसे करूं. यू हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम द राइट सोर्स. और एक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि वो कितना दीनी इल्म रखता है और कितना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट और फॉलो करता है, और कितना अल्लाह ताला ने उसको सक्सेसफुल या कामयाब बनाया है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि हम कहाँ से एडवाइस लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है. अगर किसी जाहिल या किसी बेवकूफ से आपने एडवाइस ली, हो सकता है कि आपके डिसीजंस विल बी रॉन्ग. सो बी श्योर फ्रॉम वेयर यू सीक योर एडवाइसेस. सो she went to an expert, to a scholar. ये जो था, ये क्रिश्चियनिटी प्री इस्लामिक पीरियड में क्रिश्चियनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था. एंड ही यूज्ड टू राइट द हिब्रू स्क्रिप्चर्स, and he would write from the Injil in Hebrew what Allah willed for him to write. He was an old blind man. We have discussed about it earlier also जब हम लोग ये signs of prophethood वगैरह पढ़ रहे थे, if you remember. And then Khadija radiallahu anha said, my cousin, listen to your nephew. Waraka said, oh my nephew, what did you see? Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam told him what happened to him. Waraka replied, this is the Namus, that is the angel who is entrusted with divine secrets that Allah sent to Musa alayhi salam. I wish I were younger. I wish I could live up to the time when your people would turn you out. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, will they drive me out? Waraka answered in the affirmative and said, anyone who came with something similar to what you have brought was treated with hostility. And if I should be alive till that day, I would support you strongly. A few days later, Waraka died and the revelation also subsided.
जब खदीजा रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरका के पास पहुंचे और उनको बताया कि क्या उनके साथ हुआ हादसा, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और कहा कि ये जो एंजल आपके पास आया था ये नमुस है। उनकी टर्मिनोलॉजी और किताब के मुताबिक ही वाज टेलिंग, कहते हैं ये वो है जिनके पास डिवाइन सीक्रेट्स रिवील किए जाते हैं, और यही मूसा अलैहि सलाम के पास भी यही एंजल आए थे। एंड देन ही इज एक्सप्रेसिंग फर्दर कि मैं उम्मीद करता हूं कि काश मैं यंग होता तो मैं उस टाइम पर तुम्हारा साथ देता जब लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म करने वाले हैं और तुमको जिला वतनी करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट शॉक्ड एंड सरप्राइज, बिकॉज इतनी इज्जत और इतना प्यार और इतना उनका दबदबा था मक्का में, अब वो सोच रहे हैं कि वहां से मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझ पे जुल्म सितम होंगे। तो ही वाज शॉक्ड, ऑफ कोर्स ही डिडंट नो, दैट मींस उनके पास गैब इल्म नहीं था। अनदर एग्जांपल टू प्रूव दैट यस ही वाज अ बशर। तो उन्होंने कहा, वरका ने कहा कि यस आपको निकाल दिया जाएगा, बिकॉज जो मैसेज आप लेकर आए हो और आगे आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंजाम दोगे उनके साथ यही मामला होता है। सी, एक पढ़े लिखे एक्सपीरियंस नॉलेजेबल स्कॉलर की एडवाइस। एंड देन इस किस्से के बाद वरका जो है he died. Interruption of revelation. Ibn Sa'ad reported on the authority of Ibn Abbas that the revelation paused for a few days. After careful study, this seems to be most authentic version. To say that it lasted for 3.5 years. कुछ कहते हैं कि 3 और कुछ कहते हैं 2.5 years. ये जो सिलसिला था वही का वो रुक गया। इसके बाद एक बड़ा वक्फा आ गया, बिग ह्यूज गैप, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years. तो 2.5 साल से 3 साल तक का वक्फा आ गया। Meanwhile, the prophet was caught in a mixture of emotions, dependency coupled with astonishment and bewilderment. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत कैसी थी? अब उनके अंदर गहमा गहमी चालू हो गई, क्वेश्चन एंड आंसर्स चालू हो गए कि why did it stop? क्या हो गया? अल्लाह ताला was like he was the chosen one, then suddenly ये stop क्यों हो गया? Because 2.5-3 साल is not a small period. इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। So he's waiting, he's thinking, he's contemplating, and उनका emotions जो है पूरे mixed हो रहे हैं। Okay, he's not able to get the answers. In the book of dreams, Al-Bukhari recorded that the divine inspiration paused for a while and the prophet became so sad, as we have heard, that he intended several times to throw himself from the top of the high mountains. ये जब मैंने first time इसको जब पढ़ा था ना, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, and I was like really shocked, and मुझे यानी दिस इंफॉर्मेशन वाज वेरी न्यू टू मी कि जब ये जो 2.5 से 3 साल का पीरियड था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने डिप्रेस हो गए थे, इतने डिप्रेस हो गए थे कि उन्होंने 1-2 बार सोचा कि वो सुसाइड कमिट करे। हैव यू एवर हर्ड दैट? आई मीन दिस इंफॉर्मेशन इज न्यू, बट दिस मेक्स मी फील कि देखें आप, इसमें हम लोगों के लिए बहुत सारी लेसन्स हैं। मसलन गेटिंग डिप्रेस्ड इज नॉर्मल, बीइंग अ ह्यूमन देयर विल बी टाइम्स जब आपका ग्राफ जो है ऊपर नीचे होगा। देयर आर टाइम्स जब आप बहुत ज्यादा गमगीन, बहुत ज्यादा मायूस, बहुत ज्यादा कहीं से कोई उम्मीद का सुराग नहीं दिखने वाला स्टेज होगा, एंड यू वुड फील के ये लाइफ आपकी किसी काम की नहीं है। बट इफ यू हैव अल्लाह इन योर लाइफ, ये ऑफ कोर्स कुरान रिवील यानी दीन पूरी मुकम्मल उतरने से पहले की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, राइट? बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इतने गमगीन हो गए कि ही वांटेड टू थ्रो हिमसेल्फ फ्रॉम द माउंटेन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, और अपनी जान लेने की उन्होंने सोची। तो ये एक नेचुरल कैफियत है जब आपकी लाइफ में कहते हैं ना उम्मीद का सुराग। उम्मीद का सुराग क्या है? व्हाट इज द होपफुलनेस दैट अल्लाह इज देयर, व्हाट इज द होपफुलनेस दैट कुरान इज देयर, दैट यू हैव पीपल अराउंड यू। जब हम लोग वो शुक्रगुजार होने लगते हैं, जब हम इबादत में मशगूल होने लगते हैं, जब हम अल्लाह के जिक्र से अपनी जबानों को और अपने दिमाग, हमारे दिल को हम तर रखते हैं, तब हमारे अंदर ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये एंगिश, ये सारी टेंडेंसीज नहीं आती है। ठीक है, तो ये अगर हम हटा दें, माइनस करें, अभी फॉर एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नहीं आ रही थी, देयर वाज नो कनेक्शन, तो इमीडिएट हॉलो था ये। दिस इज द ओनली पार्ट वी कैन थिंक कि जब आप ये चीजें अपने लाइफ से माइनस कर दोगे और दुनिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं और दूसरी चीजों में, तो ये आपको किधर ले जाएंगी? देन ये आपको एम्प्टीनेस पे ले जाएंगे। देयर विल बी अ वॉइड इन योर हार्ट। बट इफ यू फिल योर हार्ट विद कुरान, इफ यू फिल योर हार्ट विद लव ऑफ अल्लाह, हुब्बुल्लाह, खलास यू आर फुल। आपके अंदर एक इत्मीनान रहेगा, आपके अंदर सकीनत उतरेगी।
सो इफ यू माइनस, आप कभी भी सुने किसी की भी बात कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, इमीडिएटली उसको अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश करें, इमीडिएटली उनको कहें कुरान से कनेक्ट हो जाओ. इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, लिसन, जिक्र करो, अस्तगफार करो, और आप देखेंगे कि धीरे 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 ये पॉइजन जो है खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. So we can, I mean, this is something different कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, of course before the advent, he was trying to commit suicide only because 2.5 से 3 साल तक there was no connection with Allah Azza wa Jal. Every time he went up the mountaintop in order to throw himself, Jibreel would appear before him and say, "Oh Muhammad, you are indeed Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, and in truth." तो जब भी वो जाते थे तो उनके सामने वो जिब्रील अमीन की तजल्ली आती थी, इमेज आती थी, और वो कहते, वो अश्योर करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं, आप अल्लाह के नबी हो, ओके, आप हक पे हो. तो वो उनका जो दिल है फिर से वो सुकून में आ जाता था, सकीनत उतर जाती थी. ही वुड काम डाउन एंड रिटर्न होम. यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह का इंटरवेंशन रहता था. ही इज प्रोटेक्टिंग द नबी. बट ये सारी स्टेजेस से उनको गुजरना था. Whenever the interval between the revelation became prolonged, he would do as before, but Jibreel Amin would appear before him and repeat his words, same words as before. तो ये several times, 2-3 बार हुआ है किस्सा कि he was getting very hopeless and heart उनका जो है वो बहुत गमगीन हो रहा था. फिर वो जाके अपने आप को he used to he would try to commit suicide, to throw himself from the mountains, and then Jibreel Amin would appear and he would assure him, वो उनको आके फिर गारंटी देते थे कि नो, यू आर अल्लाह's मैसेंजर, और आप जो है वो हक पर हो. फिर उसके बाद वो काम हो जाते थे, एंड देन ही यूज्ड टू रिटर्न बैक टू हिज होम. सो आई गेस वी विल स्टॉप हियर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3 o'clock. कोई सवाल है प्लीज, असीमा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, नो वरीज, बात करें आप. वी विल डिस्कस, ओपन फोरम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, गो अहेड. नो वन हैज एनी क्वेश्चन? यस सीमा. सिस्टर, आपने सबसे पहले जो बात की थी सबर की. सबर. हेलो. तो मुझे सिर्फ इतनी एक बात, जैसे हमारे यहाँ हम सुनते आई हैं, दैट मतलब अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है. इतनी ज्यादा कमी है कि अब जब मैं रियलाइज करती हूँ यहाँ पर बैठ कर, तो मुझे पता चलता है कि मुझे तो ऐसी इतनी चीजों के बारे में पता ही नहीं था. तो सिर्फ हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तुम सबर करो, तुम्हारा सबर सामने वाले को पड़ेगा. तो ये क्या ये एक सच है जो, यानी कि अल्लाह ताला ने ये चीज हमें कही है कि हाँ तुम सबर करो तो तुम्हारा सबर सामने वाले को पड़ेगा, यानी कि जो हमारे. जी जी. हाँ, नहीं कंटिन्यू करो आप, फिर मैं आई टेल यू, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट आपने खोल दिया सीमा. बट आई विल ट्राई टू आंसर यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलती हूँ. जी, बस मुझे इतना ही पूछना है कि ये अब जैसे कभी जिंदगी में ऐसे मिसहैप्स हो जाती हैं जिसके बाद आप थोड़े से मतलब इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आप सामने वाले के लिए सोचती हैं ठीक है जी, मैंने तो इसको ना मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया, अब ये जाने अल्लाह जाने. लेकिन मेरा ये कहना है कि जब अल्लाह इंसाफ पर आएगा तो फिर वो दोनों को तोलेगा. वो खाली उसको थोड़ी पकड़ेगा कि तुमने मतलब गलत किया या इसको डिप्रेस किया तो मैं तुम्हें पकड़ूं, नहीं, वो तो फिर मेरा ख्याल है दोनों को ही पकड़ेगा. तो सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि ये क्या ये आया कहना सही है और ये सोचना भी सही है. On that note ना, I would like to ask you कि आपके हिसाब से सबर क्या है? सबर यही है कि अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला आपको जगह जगह पर बैठकर आपको ऐसी आपकी यानी कि आपकी शख्सियत जो उसको मस्क कर रहा है, जगह जगह पर आपको जलील कर रहा है और आपको फील हो रहा है कि ये मुझे ही कहा जा रहा है, तो आप वहां पे सबर कर रहे हो. why did I ask you कि किस आपके हिसाब से सबर क्या है? बिकॉज हम लोग जो है ना, सबर की माने जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, there is a stage of being active, there is a stage of being neutral, and there is a stage of being passive या dormant. यानी ये जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया ना, हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता था कुछ नहीं करने का नाम सबर है. यानी अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको कोई गलत कामों के लिए बुला रहा है, यानी कोई भी एक एक्टिविटी हो रही है और आपसे कहा जाएगा सबर सबर, जो सबर करेगा उसके साथ अल्लाह है. बट सबर के असल जो एक्टिविटीज है या जो सबर की जो रियल रूह है या मीनिंग है, वो ये है कि सही चीज को करना, बुरे चीज से बचना और अल्लाह की कदर पे राजी होना. आई मीन अंडरस्टैंड मी क्लियरली. हाँ, सबर का मानी है कि आप एक जगह पे
एक्टिव होंगे, यानी आप अच्छाई का काम जो आपको करना चाहिए वो आप बेशक करेंगे। उसके बाद आप जो है ना इनएक्टिव होंगे फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, और उसके बाद आप न्यूट्रल होंगे कि आप अल्लाह की कदर पे राजी होंगे। जो भी आपकी कदर में है, यू हैव टू डू सबर ऑन दैट। बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आई एक्सप्लेन दिस 3 डिफरेंट स्टेजेस। मसलन यू आर अफ्लिक्टेड विद द डिजीज, आपको एक बीमारी हो गई है, अब आप क्या करेंगे? अब कोई आके आपको बोले सबर करो, सबर की मानी ये नहीं है कि आप इलाज नहीं करेंगे। सबर की मानी क्या है कि आप इलाज करेंगे, जो आपकी इस्तेताअत में है, आपकी कैपेसिटी में है, वो आप कॉजेज एंड इफेक्ट जो है ना, वो आप बेशक पूरी भरपूर आप अपना इलाज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप वो सारी चीजों से रुक जाएंगे जो आपकी बीमारी को बढ़ावा दे रही है, आप अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे, तो वहां पर आप जो बुरे काम है उससे आप बच गई। और फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बैठेंगी तवक्कुल करके, सुकून करके कि अल्लाह ने मेरे कदर में जो रखा है, आई नो वेरी वेल देयर इज खैर बिहाइंड दिस, आई विल गेट अ कंपनसेशन, मैं फिर डोरमेंट हो जाऊंगी। तो ये हमने जरूर करना है। बट हमारे यहाँ पे क्या चलन है पता है कि कुछ नहीं करने को सबर कहते हैं। डोंट डू एनीथिंग, दैट इज सबर फॉर यू, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। देयर आर दिस 3 थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू डू। एक जगह पे आपको एक्टिव होना है, एक जगह पे आपको डोरमेंट होना है, और एक जगह पे आपको न्यूट्रल होना है। तो इसीलिए अगर आप कई बार ऐसी रिलेशनशिप्स की अगर आप बात करिए तो स्टेजेस ऐसी आएंगी कि यू कैन नॉट सस्टेन, आप जो है एक रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाती हो। तो आपके लिए डोर्स खुले हैं कि आप जो पॉजिटिव सोल्यूशन है, इस्लामिकली जो सोल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, गो अहेड विद इट। यस मिसेस हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ सब्र के बारे में इंशाल्लाह। प्लीज गो अहेड। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है कि बस करेक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे, मैं बस इन्न सब्र सदमतुल ऊला, सब्र पहली, यानी कि जब भी हमको जो मुसीबत पहुंचती है, जो मुश्किल आता है, जो भी परेशानी आती है, तो पहली फुर्सत में हमको सब्र करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बाद में जाके, बाद में कैसे भी सब्र आ जाएगा उस पर, 1 साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन जब आइन मोमेंट में अगर आपको जब भी मुश्किल पहुंचती है तो उस वक्त सब्र करने का नाम है सब्र। उसके बाद कैसे भी एक मिसाल है, एक हदीस का मफहूम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और एक औरत है ना कब्र के पास बैठ के रो रही थी। क्या उसके घर वाले कोई फौत हो गए थे और रो रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, इनके जोर जोर से रोने की बात। तो जब है ना उन्होंने कहा कि आपको क्या मालूम, कि तुम्हें क्या पता कि मुझ पर क्या गुजरता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से What is with the net? Hello? It's connected. Sorry, the network got down. No problem, no problem. नहीं सुना आपने मेरी बात? एक्चुअली मेरा वो हो गया था, डाउन हो गया था। लास्ट का बस वो हदीस का जो था ना वो रिपीट कर देंगे आप, बशीर निसा? हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खबर के पास से गुजर रहे थे, एक औरत रो रही थी वहाँ ये खबर के पास बैठ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज्यादा सब्र करो, आप ज्यादा नहीं ये करो, यानी कि ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं। बोले तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या गुजर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर गए खामोशी के साथ। बाद में पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बाद में वो औरत है ना अफसोस करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माफी मांगने के लिए जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि इन्ना सब्र सदमतुल ऊला, जब इनके अब क्या फायदा है, जब सब्र करने के वक्त आपको सब्र करनी चाहिए। यानी कि जब भी सब्र करना है, जब भी हमको हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़े तब भी है ना हमको ये करना नहीं चाहिए, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। हम सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद बांधे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छे से रास्ता खोलेंगे। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए जब भी आपको मुसीबत आती है। तो उसके बाद भी अगर आप भूल गए, वो बाद में जब भी याद आ गई आप उस मुसीबत की बात, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उतना ही अजर मिलेगा जब आपने पहली बार पढ़ा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जज़ाकिल्लाह खैर। हाँ जी, और किसी का सवाल था कुछ? आई सॉ वन मोर हैंड। या मारिया? अस्सलाम वालेकुम मैम।
don't understand your definition of सबर. मतलब मुझे एक जो चीज समझ नहीं आई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सबर मतलब मेरे जहन में जो बात है, सबर का मतलब है खामोशी इख्तियार करना. अगर आपको कोई अजियत दे रहा है तो आप उसके बिहाफ पे चुप हो जाओ, क्या उसको बदले में कुछ नहीं बोलो. लेकिन जहां आपने बोला कि न्यूट्रल हो जाओ, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह हम न्यूट्रल हो सकते हैं. See, I tried to explain you with giving the example, क्योंकि सबर की जो माने है, एक और एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आपको इंशाल्लाह, बिकॉज सबर के रिलेटेड इतने सारे डाउट्स और इनहिबिशंस हैं, वी विल टेक अप अ प्रोग्राम ऑन सबर इंशाल्लाह. मैं डॉक्टर सफीना के साथ इसके बारे में डिस्कस करूंगी. बट टू जस्ट आंसर योर क्वेश्चन, सी अकॉर्डिंग टू द सबर, एक और एक चीज जो आप रेफरेंस इन द कुरान जो है ना, इन सूरे यूसुफ यू कैन गेट इट वेरी नाइसली, सब्रुन जमीलुन, कि भाई करने वाले काम कौन से है, और सबर की जो असल मानी है वो इस तरीके से है कि you do things that you are supposed to do in the right way. जो करने वाले काम है वो हम करेंगे, that is your active stage. ठीक है. उसके बाद to abstain from doing things जो आपके लिए सही नहीं है, यानी जो negative evilish things है उससे आप अपने आप को रोक लेंगे, that is sabr. And then the third stage which I was saying about being dormant or neutral is कि आप अपनी कदर को accept करके you will एक्सरसाइज पेशेंस. लेकिन हम लोगों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि इवन आई थिंक यू आर ऑल्सो ऑन द सेम लाइंस, कि अगर आपके ऊपर जुल्म कोई करते जा रहा है एंड देन यू विल नॉट रिएक्ट एट ऑल, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सबर. Complete sabr comprises of some actions, right actions. It comprises of some control of not doing the wrong actions, and then accepting the predestination, which is qadar. तो ये तीन को हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एंड दिस इज नॉट माय डिवीजन बाय द वे. तो ये जो है, ये दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन हाउ सबर इज टू बी टेकन. सिर्फ कुछ नहीं करना और बैठे रहने का नाम सबर नहीं. इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बीमारी का दिया कि जब आप बीमार हो जाते हो तो आप बोलोगे कि मैं कोई दवा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बैठ जाऊंगी, मैं सबर कर रही हूँ. नहीं, आपको क्या है, इस्लामिकली व्हाट इज द रूल, आपने अपना इलाज कराना है, अपनी इस्तात के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने इलाज कराना है. योर कैपेसिटी, व्हाट इज योर कैपेसिटी, उसके हिसाब से पूरा इलाज कराना है. उसके बाद आपको क्या करना है, वो सारी चीजों से बचना है जो आपके लिए नुकसानदायक है. उसके बाद आपको क्या करना है, देन यू हैव टू accept the destiny, accept the qadar. So that is the concept of sabr. Not doing anything is not sabr. Doing the right thing, abstaining from the evil things, and accepting the qadar. हाँ, ये मेरे माइंड में यही मिसकंफ्यूजन है कि देखें, एक हदीस है जिसमें लिखा आता है कि क्या कहते हैं, जब आप बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, फिर जुबान से रोको. exactly. और अगर तुम आप नहीं देख सकते तो दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है. ठीक है. मतलब ये हदीस में आता है. और सबर के रिलेटेड अगर हम बात करें इस मामले में, तो जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों ही मतलब इस चीज में आते हैं. जैसे रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला, ठीक, दोनों इस चीज में, बिल्कुल सही. उस मामले हम सबर तो खामोश तो रहेंगे, लेकिन अभी आपने जिस तरह बोला कि हम राइट पाथ पे राइट एक्शंस करके सबर करें, तो वो चीज मेरे लिए मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही थी कि अगर खामोश रहते हैं तो वो तो हम लोग, वो हम अमान का कमजोर तरीन दर्जा ना, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे. बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गए. अभी जैसे मेरे पास ना बहुत सारी यानी आई हैव लॉट ऑफ फीमेल्स जिनके इश्यूज रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिटल इश्यूज. ठीक है. तो अब वो जो है वो कहती हैं हम सबर कर रहे हैं कि रिलेशनशिप के मामले में या बच्चों को लेकर या अपनी फैमिली की या सोसाइटी में अपनी इज्जत को लेकर वो सबर करती जा रही हैं कि भाई ये आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा. बट एक पॉइंट आता है जहां पर आपका ब्रेकडाउन हो जाता है. ठीक है. और एक पॉइंट आता है जहां पर आपको एक डिसीजन लेना होता है. इस्लाम ने आपको सर्टेन इजाजत दी हुई है. सम पीपल आर मिसयूजिंग, आई एम नॉट commenting on that, but I'm talking on a genuine case. Okay, तो अगर आपको इस्लाम ने इजाजत दी है, there is a solution where you can maintain your deen. आप अपने दीन को अच्छी तरह से अपनी लाइफ में, अपने फैमिली या बच्चों की लाइफ में अच्छी तरह से निभा सकती हैं, कुछ स्टर्न स्टेप्स लेकर जो कि परमिसेबल हैं. तो आपको यहाँ पर सिर्फ खामोशी से जुल्म सहना और अपने दीन पर कॉम्प्रोमाइज करना is not the right thing to do. That is a wrong sabr, negative sabr. आप समझ रही हैं? यानी यू हैव टू टेक एप्ट सोल्यूशन एट द राइट टाइम. आपको अपना दीन बचाना है, आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चे जो आपके डिपेंडेंट है उनको भी आपको केयर रखना है. तो देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर यू आर सपोज्ड टू टेक द राइट एक्शन, और दीन इसकी इजाजत देता है. हमारा दीन वैसा नहीं है, वो भिक्षुइज्म वाला दीन नहीं है कि अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करो, ये करो, सती बन जाओ, ये सब नहीं है हमारे दीन में. हमारा दीन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है. तो वो सारी चीजों को हमें इल्म लेकर उसको सही तरीके से अंजाम देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. ऐसे नहीं करना है कि अपने आप को मार डालना है. ऐसा दीन नहीं है हमारा. हमारा दीन बहुत खूबसूरत दीन है,
तो इसमें हमको एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी पॉजिटिवली जीने का इख्तियार दिया गया है. There are solutions to every problem. Okay? तो हमको उस प्रॉब्लम्स के solutions फाइंड आउट करके उसके ऊपर अंजाम देना होता है, उस पर खरा उतरना होता है. And there is hard work, there will be trials, there will be tribulations. लेकिन how much and how good and how well you do it, बिइज़्निल्लाह, that is where you will change the course of action. तो सिर्फ जुल्म सहना is not सब्र. एंड हमको ये आइडियोलॉजी जो है उसको चेंज करनी है, क्योंकि हमारे बड़ों ने या मे बी उनको नहीं पता था या अल्लाह आलम व्हाट वाज द प्रॉब्लम, बट बहुत रॉन्ग डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन हमारे अंदर इनग्रेन की गई है सब्र को लेकर. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. एग्जैक्टली यही है ना कि हम अगर हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया कि अगर हाँ जी एक मर्द हाथ उठाता है एक औरत पर तो वो एक परसेप्शन बन गई है, हाँ जी मर्द मारते हैं या मर्द उठाते हैं, ये चीज उसमें नहीं आती. तुम सब्र करो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए. ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये रॉन्ग परसेप्शन है और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इसको हमारे देखा जाए तो वो आप आदमी को भी एक गुनाह में मुब्तिला कर रहे हो. औरतों के ऊपर हाथ उठाना या ये वायलेंस डोमेस्टिक, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ दीन नहीं है. ये जो है हमारे महरम का चलन नहीं हो सकता. यानी दिस इज नॉट समथिंग दैट हम अपनी लड़कियों को या बेटियों को ये सलाह देते रहे कि दुनिया के लिए दिखाने के लिए या ससुराल में रखने के लिए. हमें क्या फियर है कि अल्लाह ना करे नौज़बिल्ला डिवोर्सी का टैग नहीं लगे. यू नो हमारे जो मफाद है वो जाती है, पर्सनल मोटिव्स हैं, उसके अंदर हम एक पूरी जान और उसके साथ रिलेटेड उसके बच्चों की जान जो है हम खतरे में डाल रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं ये मोर ऑफ कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट और प्रेशर है, ये दीन का हिस्सा नहीं है. जुल्म सहना, जुल्म करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर दीन. और इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, विच इज अ वेरी गुड हलाल सोल्यूशन. हम लोगों को बस उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए. हमारे बड़ों का दिल इसके लिए बड़ा होना चाहिए. हमारे जो लोग पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दे शुड नो, दे शुड हैव द इल्म, दे शुड नॉट बी अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली एंड कल्चर. लेकिन जब हम ये कल्चरल की कम्मल ओढ़े हुए रहते हैं ना, तो हम हकीकत से अपना जो है फेस जो है वो टर्न कर देते हैं. लेकिन हम बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग बिलीविंग मुस्लिम्स, हमें जो है इस्लाम को तरजीह देनी है. व्हाट डज इस्लाम से अबाउट दिस, हमको उसको इंपॉर्टेंस देना है. जिस दिन हम उस चीज को प्रायोरिटी में टॉप में ले आएंगे तो अपने आप प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी बिइज़्निल्लाह. जज़ाकुल खैर. नो प्रॉब्लम. वयाफी. एनीबॉडी एल्स गाइस, इज इट टाइम टू साइन आउट? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.